First of all, in the beginning name of Almighty Allah, who is most beneficent and most merciful. So guys, once again I'm here. I'm back with a new topic that is noun. In previous lecture, we discussed about the introduction of noun, and in this video, we are going to learn about the further information about the noun. So without wasting time, let's get started. So first of all, we have to recognize the word noun. So guys, look at the board, and first of all we have to recognize what does it mean, what is the meaning of noun. Noun is equal to, you can say, the man. So in this video we are going to learn about the noun, and I want to give you further information about the noun. So guys, you know that you are in a primary section and your teacher taught you about the noun. So what is the real definition of noun? Noun is a naming word, everything is noun. So guys, so once again I want to give further information about the noun. So noun, what's the real definition of noun? So noun is a word used as a name of person, place, something. Noun is a naming word. Everything is noun. But look at the word, this is my definition. The noun is equal to name. And it is very easy to remember this. It is not difficult to memorize. Noun is equal to name. Okay. So first of all, I'm going to write a definition of noun, and then we will discuss about the noun. Noun is a word used as the name of person, place, or thing. So guys, look at the word, and this is the definition of noun. So noun is a word used as the name of person, place, or thing. So this is the definition of noun. So noun tells us something about a person, place, and thing. And one thing I am going to write: music. And also given the goodness. So now the question arises here: so what kind of noun there are? If the definition is that noun is a word used as a name of person, place, or thing, so what kind of noun there are? Music and goodness, what kind of noun there are? Music is not the name of person, and also it is not the place, and also it is not thing. So what kind of noun it is? The music and goodness, these nouns are abstract nouns. So abstract noun, those nouns which can't be counted and which can't touched and which can't be seen. So these are nouns, abstract nouns. Only you can feel that. Inshallah, we are going to learn in the next and third video, and inshallah we are going to learn. So in this video, I want to give further information about noun. तो नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या कर सकता है, कितने फंक्शन है नाउन के, देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि नाउन को हम सब्जेक्ट बनाएं, नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट बन सकता है. नाउन जो है ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का. नाउन इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है. एंड द लास्ट वन, नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में
कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो कहने का मकसद है कि नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट एंड एज एन कॉम्प्लीमेंट। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन इंग्लिश ग्रामर में कौन सा एक्शन क्या क्या कर सकता है, कुछ क्या परफॉर्म कर सकता है। नाउन इंग्लिश में सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन इंग्लिश में किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन किसी भी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, और नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और भी कुछ काम कर सकता है। पर इन दिस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन के 4 स्टेप, 4 पॉइंट, कैसे हम नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड लास्ट वन कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे नाउन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और सब्जेक्ट कैसे देखें, इफ आई से टिम consulted the good doctor yesterday. So I have written one line over here. Tim consulted the good doctor yesterday. So first of all, we have to recognize, we have to identify the subject. Here is the Tim. Tim is the name of person. Tim here the name of person. ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन हो गया तो सब्जेक्ट बन गया। तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का काम जो है नाउन कर सकता है, तो नाउन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद देखेंगे कंसल्ट हमारी क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म, दैट बिलोंग्स टू पास्ट सिंपल टेंस, एंड द गुड हियर द एडजेक्टिव, एंड डॉक्टर हियर द नाउन, यस्टरडे हियर द एडवर्ब। ओके, आगे जाके सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होती है, नाउन जो है एडवर्ब क्या होता है, वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ऑल ईच एंड एवरी वीडियो विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी गाइस, each and every video will be provided. This is my second video, English by Rizwan Khan. In this video we are going to learn about 4 types of noun. Okay, देखेंगे सब्जेक्ट जो है नाउन बन सकता है। टिम क्या है, इज द नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो टिम कंसल्टेड द डॉक्टर yesterday. टिम कंसल्टेड whom, the doctor. But what kind of doctor? The good. But when? Yesterday. आप इसे आंसर रिप्लाई क्वेश्चन करो इस लाइन से तो आपको रिप्लाई मिल जाएगी। रिप्लाई क्या है, टिम कंसल्टेड whom, whom से रिप्लाई मिल गया तो ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाट काइंड ऑफ, द गुड, एडजेक्टिव बन गया। कब, व्हेन, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि नाउन को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। The president of Pakistan rewarded the brave soldiers. So I have written one line over here. The president of Pakistan rewarded the brave soldiers. तो हमें इस लाइन में सेकंड क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट जो है नाउन को बनाना है। सब्जेक्ट नाउन बन गया, अब नाउन को क्या बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
यहां तक जो है ये हमारा हो गया पूरा के सब्जेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर कई क्वेश्चन, ये फ्रेज है। रिवॉर्डेड, ये हो गया हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म। रिवॉर्डेड होम, तो होम से रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं किसको, सोल्जर्स को। बट व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर्स, द ब्रेव, दिस इज एन एडजेक्टिव and this is a verb second form and this is the object। ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा नाउन है, तो नाउन बन गया ऑब्जेक्ट। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिवॉर्डेड whom, सोल्जर्स। बट व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर्स, द ब्रेव। ऐसे नहीं कि सबको रिवॉर्ड दे दिया, जो क्या थे, ब्रेव थे। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिवॉर्डेड द ब्रेव सोल्जर्स। ओके, आई थिंक नाउ पॉइंट इज क्लियर। अब हमारी तीसरी पॉइंट है कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया नाउन। अब नाउन को हमें बनाना है क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखें। इफ आई से ही इज फॉन्ड ऑफ he is fond of singing। So I have written one line over here, he is fond of singing। देखिए सेक्शन को हम ब्रेक करते हैं। ही हमारा बन गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया वर्ब, फॉन्ड हमारे हो गए एडजेक्टिव, ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन और सिंगिंग हमारा हो गया नाउन। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होगा कि सिंगिंग तो वर्ब होती है, यहाँ पर नाउन कैसे हो गई, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होता। ये हमारा क्या है, जेरंट। जेरंट हम पढ़ेंगे, वो भी एक्ट ऐसा करेगा किसकी तरह, नाउन की तरह, इन्फिनिट जेरंट। तो ऑफ हो गई हमारी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमारा हो गया सिंगिंग, हमारा क्या है, नाउन है, नाउन है तो जेरंड है, जेरंड है तो ये प्रीपोजिशन का क्या है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी नाउन बन सकता है और प्रीपोजिशन का भी। आप ऐसे कह सकते हो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ओके, इफ आई से he bought a book for you, तो for क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है, you इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। for you from कहाँ से, from पडिगल स्टेशन, तो from पडिगल स्टेशन, from कराची, तो from here the preposition कराची, here preposition का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो he bought a book for you from Nusrat Firoz। एक बात मैं बताऊं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा हमारा टॉपिक से क्लियर नहीं होता। ऑब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, प्रीपोजिशन के। ये आप याद रखना, ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं या तो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब आता है तो उसके साथ भी हम ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑब्जेक्ट नहीं होते क्योंकि ऐसे वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं। देखें, आप हमारा प्रीपोजिशन है, सिंगिंग इस प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो तीसरी पॉइंट हमारी क्या थी कि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। एंड फोर्थ वन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, अक्सर जो स्टूडेंट हैं गलतियां करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को वो ऑब्जेक्ट समझते हैं। इफ आई से शी
is a teacher. She is a teacher. अब इसको ब्रेक करते हैं. She हमारा क्या है? सब्जेक्ट. is हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो my dear student, once again I request, it's my humble request, don't call it helping verb. This is not your helping verb. This is, you can say, this is the main verb. Also you can say this is a linking verb. And you can say this is a linking verb to be verb, main verb. But it's humble request, don't call it helping verb. अब मैं लेता हूँ, ये हमारा क्या है? वर्ब है. वर्ब है तो इसको आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हो. इसको आप टू बी वर्ब कह सकते हो. इसको आप जो है लिंकिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब आप कह सकते हो इसको. बट डोंट कॉल इट हेल्पिंग वर्ब. इफ यू कॉल इट हेल्पिंग वर्ब तो योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. तो गाइस, आल्सो यू शुड हैव बेटर ट्राई, यू हैव बेटर मेमोराइज वन थिंग इज दैट दिस इज नॉट योर हेल्पिंग वर्ब. ओके, ए हमारा क्या है? आर्टिकल. टीचर हो गया हमारा क्या बनेगा? नाउन. कुछ बच्चे कहते हैं सर नाउन है तो ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. कौन सी कॉम्प्लीमेंट है? दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो शी इज अ टीचर. शी हमारा हो गया सब्जेक्ट. इज हमारा हो गया मेन वर्ब, आल्सो लिंकिंग वर्ब, आल्सो टू बी वर्ब, बट कांट से हेल्पिंग. उसके बाद ए हमारा क्या है? एक आर्टिकल है. टीचर हमारा क्या है? नाउन है. नाउन है तो कॉमन है. कॉमन है तो सिंगुलर है. सिंगुलर है तो मस्कुलिन जेंडर है. तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे. ओके, तो नाउन है तो हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. कौन सी कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. सब्जेक्ट के बारे में बता रही है कि टीचर कौन? शी. आगे समझ में? आई थिंक नाउ माय पॉइंट इज क्लियर. तो वंस अगेन आई रीडाइट, वंस अगेन आई रिपीट. तो टॉपिक हमारा क्या था? नाउन के बारे में. नाउन की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी कि नाउन इज नेमिंग वर्ड. एवरीथिंग इज नाउन, बट इट्स माय डेफिनेशन. नाउन इज इक्वल टू नेम. नाउन इज इक्वल टू नेम. याद करने में आसान होगी. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेमोराइज. नाउन इज इक्वल टू नेम. हाँ, अब बात होती है कि नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में और कितने एक्शन कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि नाउन हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया. इफ आई से मिस्टर जॉन कंसल्ट द गुड डॉक्टर, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर जॉन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? जॉन हो गया. स्टेप वॉश कार, तो स्टेप क्या कर रहा है? कार को धो रहा है. तो स्टेप क्या है? हमारा सब्जेक्ट बन गया. इफ आई से मिस्टर रिजवान कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो रिजवान क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है. क्या कर रहा है? तो आगे जाके देखेंगे वर्ब का और ऑब्जेक्ट का क्या फंडा होता है. तो सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नाउन कैन बी यूज्ड बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है. तो गाइस, आज का लेक्चर यहाँ पर हम खत्म करते हैं. तो वंस अगेन दिस इज माय सेकंड वीडियो इंग्लिश बाय रिजवान खान, and inshallah we are going to make a new video for you, and that is subject, verb, object, and subject, verb, agreement, noun, its types. So guys, once again please don't worry, and each and every video will be provided. Okay, bye. Wish you all the best.